Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 6th of November, 2020, and today's Dawn editorials are Rescuing Industry, the number one. And let me elaborate in details. The government decision to slash electricity prices for all industrial users while announcing some additional incentives for small and medium enterprises could prove a life-saving measures for many. छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए कुछ इजाफी मराहत का ऐलान करते हुए तमाम सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का हुकूमत का फ़ैसला बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला इकदाम साबित हो सकता है। अब स्लैश का मतलब है कम करना, कटौती करना, और एंटरप्राइजेस का मतलब है companies. The industry was desperate for help because of the impact of COVID-19 and struggling to retain and possibly increase the share of the country's stagnating exports in international market. स्टैगनेटिंग यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब है जमूद का शिकार, कोई चीज़ फ्रीज़ हो चुकी है, बेहरकत या मोशनलेस। इंडस्ट्री कोविड-19 के असरात और बैनुल-अक़वामी मंडियों में मुल्क की जमूद का शिकार बरामदात को बरकरार रखने और मुमकिन तौर पर इनमें इजाफे के लिए कोशिशों की वजह से मदद के लिए बेचैन थी। The industrial energy package also anticipates a significant boost to domestic economic growth and employment, as it will act as a major incentive for companies to once again operationalize their existing idle production capacity. Anticipates का मतलब है मुतवक्का तौर पर। सनती तवानाई पैकेज घरेलू मुआशी नमू और रोज़गार के लिए बढ़ोतरी की तवक्को पैदा करता है, क्योंकि ये कंपनियों को अपनी मौजूदा बेकार पैदावारी सलाहियत का एक बार फिर ऑप्शनलाइज करने के लिए अहम मराहत का काम करेगा। With electricity 25 PC more expensive in Pakistan than in other countries in the region, our exports had long been lagging behind their competitors in global market. Lagging behind का मतलब है पीछे रह जाना। ख़िते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में बिजली 25% महंगी है। हमारे बरामद कुनंदगान आलमी मंडियों में अपनी हरीफों से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। Some would argue that the energy bill of the firms is only one of the many factors responsible for jacking up their cost and affecting their competitiveness globally, yet the reduction in electricity rate is a move in the right direction. यहाँ पे जैकिंग अप का मतलब है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग। कुछ लोग ये इत्तफाक करेंगे कि फर्मों का एनर्जी बिल इनसे बहुत से अवामिल में से एक है जो इनके अखराजात में इजाफ़े और आलमी सतह पर इनकी मुसाबकत को मुतासर करने के ज़िम्मेदार हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिजली के नरखों में कमी दुरुस्त सिमत में एक अहम इक़दाम है। Now the government can focus on other issues such as taxation and labor productivity to enhance the country's industrial competitiveness and improve the quality of product. Competitiveness का मतलब है मुसाबकत, यानी आप किसी के साथ compete कर रहे हो या मुकाबला कर रहे हो। अब हुकूमत मुल्क की सनती मुसाबकत को बढ़ाने और मसनूआत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए टैक्सों और मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत जैसे दीगर अमूर पर तवज्जो दे सकती है। The relief package eliminates peak hours rate from the electricity tariff of the entire industrial sector, a concession that all fairness should also be extended to domestic consumers, and allows a 25 PC relief in power bills on the additional consumption of units for the next 3 years. रिलीफ पैकेज ने पूरे सनती शोबों के बिजली के नरखों से पीक आवर्स की कीमतों को ख़त्म कर दिया, ऐसी रियायत के जिसे तमाम तर इंसाफ के साथ घरेलू सार्फिन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए, और अगले 3 सालों तक यूनिट्स की इजाफी खपत पर बिजली के 25% रिलीफ की इजाज़त दी जाएगी। In further slashes, the tariff for SMEs on the consumption of additional electricity of rupees 8 per kilowatt hour for 10 months till June 30 next year. SMEs के बिजली के इजाफे की खपत पर अगले साल 30 जून तक 10 महीनों के लिए 8 रुपये पर किलोवाट तक नर्ख में मज़ीद तखफीफ या कमी कर दी गई है। The package is estimated to cost government around rupees 20 billion to rupees 30 billion, which is money well spent in light of overall impact on the economy, growth, jobs, exports and taxes. इस पैकेज पर हुकूमत की करीबन 20 से 30 अरब रुपए की लागत आएगी, जो कि माशियत, ग्रोथ, मुलाजमतों, बरामदात और टैक्सों पर मजमूई इसरात के हिसाब से अच्छी तरह से खर्च की गई रकम है। Besides, the potential increase in power consumption will help the government utilize unused and idle generation capacity, especially during winter, as many companies have shifted to gas-based, cheaper captive power will now return to the national grid.
ये आइडल का मतलब है बेकार या बगैर किसी काम के रहना। इसके अलावा बिजली की खपत में मुमकिन इजाफे से ख़ास तौर पर सर्दियों के दौरान हुकूमत को गैर इस्तेमाल शुदा और बेकार पैदावारी सलाहियत के इस्तेमाल में मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ जो गैस पर मबनी सस्ती पुरकशिश पावर में मुंतकिल हो गई हैं अब कौमी ग्रिड में वापस आएंगी। Thus, the government should not find it very difficult to sell the package to the IMF with which it is negotiating to revive the $6 billion bailout package. Negotiate का मतलब है बातचीत करना, revive का मतलब है बहाल करना और bailout का मतलब है किसी इदारे को दी जाने वाली इमदाद। इस तरह हुकूमत को IMF को इस पैकेज को फ़रोख्त करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिसके साथ वो $6 बिलियन के बेल आउट पैकेज को बहाल करने के लिए बातचीत कर रही है। Apparently, the relief package is part of a larger plan to fix the country's inefficient and erratic power sector, liquidate the circular debt that has grown to rupees 2.3 trillion, reduce to size of the annual fixed capacity payment of rupees 900 billion being made to IPPs. The capacity payment are estimated to rise rupees 1600 billion by 2023 if nothing is done to contain and reduce them, and decentralize powers distribution to provinces by doing away with electricity subsidies and cross subsidies for different consumers. इरेटिक का मतलब होता है अनसर्टन, गैर यकीनी, और लिक्विडेट का मतलब होता है डिज़ोल्व करना या ख़ात्मा करना। बज़ाहिर इमदादी पैकेज मुल्क के नाकारा और गैर यकीनी बिजली के शोबे को ठीक करने, 2.3 ट्रिलियन रुपये तक बढ़ने वाले सर्कुलर कर्ज को ख़त्म करने, IPPs को पेश की जाने वाली 900 अरब रुपए की सालाना फ़िक्स्ड गुंजाइश की अदायगी, जो कि तखमीना है कि 2030 तक गुंजाइश की अदायगी जो है 1600 बिलियन रुपीज़ हो जाएगी, उन पर काबू पाने में और इसमें कमी लाने के लिए कुछ नहीं किया गया तो को कम करने और मुख्तलिफ सार्फिन के लिए बिजली की सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करके बिजली की तकसीम को सूबों के हवाले करने के लिए एक बड़े सूबे का हिस्सा है। The ultimate objective is to create competitive wholesale and retail electricity markets in the country where consumers would have the option to switch from one retailer to another. खुतमा मकसद ये है कि मुल्क में मुसाबकती होलसेल और रिटेल की बिजली की मार्केटें बनाएं, जहां सार्फिन को एक रिटेलर से दूसरे रिटेलर की तरफ स्विच करने का इख्तियार हासिल हो। अल्टीमेट का मतलब है हतमी। द जॉब मे बी क्वाइट डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। काम मुश्किल होगा, काम काफ़ी मुश्किल है ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। बहुत ही एक अच्छा कदम है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, PTI का, ये कि जो इंडस्ट्री के सार्फिन हैं उनकी तरफ जो है ना, उनकी तरफ उन्होंने किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, या उनके लिए ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो टुडेज़ सेकंड वन इज़ न्यू NSS रूल. For many Pakistanis looking to park their hard-earned savings somewhere reliable from where they can meet their periodic financial needs, national saving schemes are usually the investment of choice. बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी मेहनत से कमाई जाने वाली बचत को कहीं काबिल-एतमाद जगह पर महफूज करना चाहते हैं, जहाँ से वो अपनी वक्तन फ़वक्तन माली ज़रूरियात पूरी कर सकते होंगे। कौमी बचत स्कीमें आम तौर पर इंतखाब की सरमायाकारी होती हैं। Returns from these are not among the most lucrative, but that is offset by the fact that they are comparatively low risk and less susceptible to the volatility of other investments एवेन्यूज़ सच एज़ द स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे लुक्रेटिव का मतलब है नफ़ा बख्श यानी मुनाफा बख्श, ऑफसेट का मतलब मुतवाज़न करना, और ससेप्टिबल का मतलब है मुतासिर होने वाला शख्स। इनसे मिलने वाले फ़वाइद ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है, लेकिन इस हकीकत की वजह से कि ये मुतवाज़न है कि ये निस्बतन कम ख़तरे वाले और स्टॉक मार्केट जैसे दीगर सरमायाकारी के रास्तों के उतार चढ़ाव के हिसाब से कम हसास हैं। छोटे और दरमियानी दर्जे की बचत कुनंदा जो हैं उनके बारे में भी नेक्स्ट लाइन में है। स्मॉल एंड मीडियम सेवर्स इन देयर रिटायरमेंट ईयर्स कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पूल ऑफ NSS इन्वेस्टर्स। अब इस हवाले से अगर बात की जाए तो छोटे और दरमियानी दर्जे की बचत कुनंदा अपनी रिटायरमेंट के सालों में NSS के लिए सरमायाकारों को एक बहुत बड़ा पूल मानते हैं या ग्रो मानते हैं। देयर इज़ मच consternation among these senior citizens in particular over the changes in the government has recently made in the nominee rules for NSS, making the payout procedure vastly more cumbersome. अब यहाँ पे consternation का मतलब है इज़्तिराब और cumbersome का मतलब है भारी या बोझल। हुकूमत ने NSS के नामज़द करदा कवायद में जो तब्दीलियाँ की हैं, जिसकी वजह से अदायगी का तरीक़ाकार ज़्यादा पेचीदा हो गया है, इसकी वजह से ख़ास तौर पर सीनियर शहरियों में बहुत ज़्यादा परेशानी है।
The step has been taken to comply with a Sindh High Court judgment of August 23, 2016, ordering the payment of NSS dues to legal heirs as required under the Muslim law of inheritance rather than to nominated persons. ये comply with का मतलब है तामील करना, पूरा करना, तामील करना या पूरा करना, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कानून वरासत। ये कदम 23 अगस्त 2016 के सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तामील के लिए उठाया गया है, जिसमें एनएनएस के वाजबात की अदायगी मुस्लिम कानून वरासत के तहत नामजद अफराद की बजाय कानूनी वर्सा को करने का हुक्म है। According to the new procedure, the certificate purchaser or investor will no longer will be able to designate a nominee to whom the funds would go in the event of his or her death. ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है कानूनी वरासत है। नए तरीक़ाकार के मुताबिक सर्टिफिकेट ख़रीदार या सरमायाकार अब किसी शख्स को नामज़द नहीं कर सकेगा जो इसकी मौत की सूरत में फ़ंड्स वसूल करे। Instead, the payment of the principal amount and the profit thereon, if any, would be disbursed to the legal heirs according to succession certificate issued by a court of light of Sharia law. यहाँ पे हेयर्स का मतलब वारिस है और सक्सेशन का मतलब है जानशीनी। इसकी बजाय असल रकम की अदायगी और इसका मुनाफा में अगर कोई हो तो शरी कानून की रोशनी में अदालत के ज़रिए जारी करदा जानशीनी सर्टिफिकेट के मुताबिक कानूनी वर्सा को दिया जाएगा। The legal system in this country is already stretched way beyond its limited capacity. There is a backlog nearly 2 million cases long and proceeding move at a glacial pace, particularly in civil courts. बैकलॉग का मतलब है जमाशुदा और ग्लेशियल पेस का मतलब है सुस्त रफ्तारी से। इस मुल्क में पहले ही कानूनी निज़ाम अपनी महदूद सलाहियतों से आगे बढ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर सिविल अदालतों में तकरीबन 20 लाख मुकदमात पड़े हैं जिन पर सुस्त रफ्तारी से कार्रवाई जारी है। दिस बर्डन नीड्स टू बी lightened, not added to. इसमें इजाफे करने की बजाय इसका बोझ हल्का करने की ज़रूरत है। The new procedure would also constitute an unnecessary complication where there is no dispute over the payout among the legal heirs of the certificate purchaser or investors. नया तरीक़ाकार गैर ज़रूरी पेचीदगियाँ भी पैदा करेगा, जिससे जबकि सर्टिफिकेट ख़रीदने वाला या सरमायाकार के कानूनी वर्सा में अदायगी के मामले में कोई तनाज़ा नहीं है। This paper over the past few weeks has received numerous letters from readers expressing their distress over the change in rules. पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इस अखबार को कारीन के बहुत सारे खतूत मौसूल हुए हैं जो कवायद की तब्दीली में अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। The circumstances of some of them are such they cannot but worry over what is certain to be an extended ordeal for their nominees after they themselves are gone. ऑर्डियल का मतलब यहाँ पे आजमाइश है। इनमें से कुछ के हालात ऐसे हैं कि इस बात पर परेशानी नहीं कर सकते हैं कि इनके खुद गुजर जाने के बाद इनके नामजद करदा उम्मीदवारों के लिए ये तवील आजमाइश है। The Supreme Court should revisit the issue and take a view that is both compassionate and practical. Revisit का मतलब है नज़रसानी करना, compassionate का मतलब है शफ़क़त आमेज़ या हमदर्दाना। अदालत उज़्मा को इस मामले पर दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए और एक ऐसा नज़रिया अपनाना चाहिए जो हमदर्दाना और अमली तौर पर भी मुमकिन हो। One way out, which would achieve the same result as that desired by the government, is to go back to the nominee system, but have this individual give an undertaking that he or she will, when the time comes, distribute the proceeds from the NSS in accordance with the inheritance law. एक रास्ता जो वही नताइज देगा जैसी हुकूमत की ख्वाहिश है वो ये कि नामज़द करदा निज़ाम दोबारा नाफिज कर दिया जाए, लेकिन इस फ़र्द को ये वादा करना होगा कि वो वक्त पर आने पर NSS से हासिल शुदा रकम वरासत के कानून के मुताबिक तकसीम करेगा। आज का जो तीसरा एडिटोरियल है दैट इज़ स्टोलन रेलिक्स, इसके हवाले से बात करते हैं। द रिटर्न ऑफ 45 आर्टफैक्ट्स यानी नवादरात ऑफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ इन न्यूयॉर्क बाय द मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ ऑफिस शुड बी मूवमेंट टू सेलिब्रेट। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी हकाम को 44 नवादरात की वापसी एक खुशगवार लम्हा है। द रेलिक्स आर वैल्यूड टू अराउंड $250,000 and include sculptures of the Buddha from the गंधारा पीरियड। इन आसार की कीमत तकरीबन $250,000 लगाई गई है। इसमें गंधार और दौर के बुद्धमा के मुजस्मे शामिल हैं। The return of these artifacts follows a lengthy probe by the U.S. Homeland Security Investigation Office in the collection of Naif Homsi, described as a known trafficker involved in illegal looting, exportation and sale of ancient art from Afghanistan, India, Pakistan and other countries.
इन नवादरात की वापसी अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जानिब से नाइफ हमसी जैसे अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से कदीम फ़न की गैर कानूनी लूट मार, बरामद और फ़रोख्त में मुलविस मारूफ स्मगलर के तौर पर बयान किया गया है। यहाँ पे ट्रैफिकर जो है वो स्मगलर को कहा गया है और प्रोब का मतलब है खोज करना। अब अच्छा, द पाकिस्तानी consulate in New York played a commendable role by pursuing the case of the artifacts and ensuring the return of these कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ट्रेयर्स। ये परसुइंग का मतलब होता है पैरवी करना, कमेंडेबल काबिल तारीफ़ है, अप्रिशिएबल है, और ट्रेयर्स का मतलब ख़जाने। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान काउंसिल खाना ने नवादरात के केस की पैरवी करते हुए इन सकाफ़ती और तारीख़ी ख़जानों की वापसी को यकीनी बनाते हुए काबिल सताइश किरदार अदा किया है। However, it is unfortunate fact that the trafficking of such significant relics continues to be thriving business in the region. ट्रैफिकिंग स्मगलिंग आ जाएगा और थ्राइविंग का मतलब है इंक्रीजिंग या बढ़ता हुआ। ताहम ये बदकिस्मत हकीकत है कि इस तरह के अहम आसार की स्मगलिंग खित्ता में एक बढ़ता हुआ कारोबार है। Equally regrettable in the lackadaisical attitude of Pakistani authorities that have failed to clamp down। अब clamp down यहाँ पे ये जो है एक फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑपरेसिव और हार्श मैनर ऑन दिस इलीगल ट्रेड ऑफ एंटिक्विटीज़ एंड डिसमेंटल द नेटवर्क दैट सेल्स हेरिटेज आइटम टू फॉरेन आर्ट डीलर्स। अब यहाँ पे लैकाडेसिकल का मतलब है नाकिस या सुस्त, एंटिक्विटीज़ का मतलब है नवादरात या कदीम आसार, डिसमेंटल का मतलब है ख़त्म करना। इस तरह अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तानी हुकाम का ये नाकिस रवैया है जो नवादरात की गैर कानूनी तजारत को रोकने और गैर मुल्की आर्ट डीलरों को वर्सा की अशिया फ़रोख्त करने वाले नेटवर्क को ख़त्म करने में नाकाम रहा है। गिवन दिस डिसइंटरेस्ट, व्हाट विल बी द फेट ऑफ दीज रिकवर्ड आइटम्स वंस दे अराइव इन द कंट्री। इस अदम दिलचस्पी को देखते हुए इन बरामदशुदा अशिया का मुल्क में एक बार पहुँच कर क्या हाल होगा। डिसइंटरेस्ट का मतलब है जी गैर दिलचस्पी लेना, और फेट का मतलब है मुकद्दर। पोस्ट एवोल्यूशन कन्फ्यूजन हैज़ एडेड टू वोज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिक्विटीज़ इन द कंट्री। वोज का मतलब यहाँ पे परेशानियाँ हैं। इनहराफ के बाद की उलझनों ने मुल्क में नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम की परेशानियों में इजाफ़ा किया है। KPN Punjab have passed their own amended versions of the Antiquities Act of 1975, but Sindh and Balochistan have lagged behind in formulating legislation to protect important heritage sites such as Mohenjo-daro। इसमें अमेंडेड का मतलब है तरमीम करना, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी। KPK और पंजाब 1975 के नवादरात के एक्ट के अपने तरमीम शुदा विजन मंजूर कर चुके हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो जैसे अहम वर्सा वाले मकामात की हिफाजत के लिए सिंध और बलोचिस्तान कानून साजी करने में पीछे रह गए हैं। Rebased and updated laws and coordinated provincial action and help check the rampant pilferage of cultural items and address the current lack of clarity over ownership of cultural property between the centre and the provinces। मजबूत और जदीद तरीन कवानीन और मरबूत सूबाई एक्शन सकाफ़ती अशिया की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई चोरी को रोकने में मदद कर सकते हैं और मरकज़ और सूबों के माबैन सकाफ़ती इमलाक की मलकियत के बारे में धुंधलाहट जो है उसको दूर कर सकते हैं। रोबस्ट का मतलब है ताकतवर, रैम्पेंट का मतलब है इंक्रीजिंग डे बाई डे, पिल्फरेज का मतलब है चोरी। बट लाज अलोन विल नॉट प्रोटेक्ट आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, लेकिन सिर्फ कावानीन जो हैं वो आसार कदीमा के वर्से का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। The country's history predates the events of 1947 by centuries, but this is not reflected in the approach of officialdom that has hardly attempted to create a sense of pride in the public। प्रीडेट्स का मतलब है प्रिडिक्ट करना। मुल्क की तारीख 1947 के वाक़यात की सदियों से पेशन गोई करती है, लेकिन इसकी अक्कासी हुकूमत की अप्रोच में नज़र नहीं आती, जिसने अवाम में फ़ख्र का एहसास पैदा करने की शायद कोशिश ही नहीं की। दिस मस्ट चेंज इफ़ द सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग बरिड सिविलाइजेशंस आर टू बी शोकेस्ड अ साइट दैट पाकिस्तान कैन प्रोटेक्ट इट्स ओन। अगर तवील अरसे से दफन होने वाली तहजीबों के राज को फ़ख्र की अलामत के तौर पर पेश किया जाए तो पाकिस्तान खुद इनकी हिफाजत कर सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टूडेज़ 3 डॉन एडिटोरियल्स। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें। ट्राई टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।